Good morning, everyone, and welcome to today's class. So, previous class we had discussed a little bit about immunity, and we have seen the different classifications of immunity. हमने humoral immunity देखा, cell-mediated immunity देखा, active immunity, passive immunity. All this we have seen. We have also seen about some of the conditions caused due to immunity, जैसे आपका allergy हो गया, autoimmunity हो गया. We have discussed about all of it. Now let us see how our immune system actually functions against them and what is our immune system to be more specific. तो हमारा immune system होता क्या है, कौन कौन से organs होते हैं उसमें, कौन कौन से cells होते हैं, कौन कौन से tissue होते हैं, which actually form our immune system. See, let me tell you कि ये immune system हमारे body का जो है, it is not like any other organ system जहाँ पे सारे organs connected होते हैं. यहाँ पे different organs different way में immune system को contribute करते हैं. ठीक है? So that we'll be discussing. So let's begin today's topic, that is immune system. Now our immune system consists basically of four different elements. Okay, first one, lymphoid organs. Now these are the organs which produce lymph and the lymphocytes. ये lymphoid organs होते हैं. ये फिर दो टाइप के हो सकते हैं, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. The second one is called as lymphoid tissues. Now there are certain tissues which forms our defense mechanism, तो उनको हम लोग बोलते हैं lymphoid tissues. थर्ड वन, बी सेल टी सेल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. We have studied about the humoral and the cell mediated immunity carried out by these structures, these cells. And the last one is the molecular immunity, which is antibodies. तो antibodies ये molecules होते हैं और ये दे आर स्पेसिफिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड इनका फंक्शन होता है कि वो एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. तो हमारा जो इम्यूनिटी होता है चार लेवल पे होता है, एट ऑर्गन लेवल, एट टिश्यू लेवल, एट सेल लेवल, सेल्यूलर लेवल एंड एट मॉलिक्यूलर लेवल. ठीक है, तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो विल बी स्किपिंग आउट ऑन दिस वन. विल बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड द लिम्फॉइड टिश्यूज. राइट, now what are lymphoid organs? The organs where origin or maturation and proliferation of lymphocyte occur is called as a lymphoid organ. Now ये lymphocyte एक specific type के WBCs होते हैं जो हमने यहाँ पे देखा, B cell, T cell, they are the B lymphocyte, T lymphocyte. तो ये जहाँ पे originate करते हैं या फिर जहाँ पे mature करते हैं या फिर जहाँ पे proliferate करते हैं, जहाँ पे उनका नंबर बढ़ाते हैं, तो ये organs को बोला जाता है lymphoid organs. The organs where the lymphocytes are originated or they mature or they proliferate. Right? Now the lymphoid organs can be broadly classified into two types. दो टाइप के हो सकते हैं. क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, the primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organs. Lymphoid organs can be of two types, the primary and the secondary. Now let us see on which basis have we classified the primary and the secondary lymphoid organs. Okay, सबसे पहले चलते हैं primary lymphoid organ में. Primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where the immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Now normally क्या होता है, ये जो B और T lymphocyte होते हैं, when they are produced directly they cannot carry out any kind of immunity. वो directly कोई immunity नहीं करते हैं. जैसे हमने humoral immunity में देखा, B cell जैसे ही किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, whenever the B cell comes in contact with the antigen, directly it does not launch an immune response. Instead, it goes to the nearest lymphoid organ. There it matures into plasma cell. Then only it produces antibody. तो ये जो मैकेनिज्म है जहां पे वो पहले मैच्योर करता है फिर जाके वो अपना एक्शन कैरी आउट करता है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म कैरी आउट करता है, तो ये जो मैच्योरेशन पॉइंट है, दैट मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गन्स, दैट इज द बोन मैरो एंड द थायमस. तो बेस्ड ऑन दीज ओनली वी हैव क्लासिफाइड द टू सेल्स. ओके, जो बोन मैरो में मैच्योर करता है, ब्रूसा सेल्स ऑफ बोन मैरो, जो लिम्फोसाइट मैच्योर करता है उसको हम लोग बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और जो थायमस में मैच्योर करता है उसको हम लोग टी लिम्फोसाइट बोलते हैं. सो द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हैव गॉट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑर्गन ऑफ मैच्योरेशन. द वन मैच्योरिंग फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट, द वन मैच्योरिंग फ्रॉम थायमस इज कॉल्ड एज T lymphocyte. Now these are the two primary lymphoid organs. Bone marrow is mainly the lymphoid organ where all the blood cells including the lymphocytes are produced. Actually bone marrow से blood formation होता है, simply बोला जाए तो the blood that is flowing through your body, the fluid connective tissue, it is mainly produced from the bone marrow only. All the cells, RBC, WBC, platelets, ये सब bone marrow से ही form होते हैं, including the lymphocytes. ये जो दो lymphocyte हमने बोला अभी, B and T lymphocyte, ये भी bone marrow से ही formation होते हैं.
थायमस ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है विच इज जनरली प्रेजेंट नियर द हार्ट एट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जहाँ पे बाइफर्केट करता है, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन होता है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था, द चेस्ट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। तो जस्ट बिलो दैट, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट अंडरनीथ इट यू विल फाइंड द थायमस एंड इट इज लोकेटेड very close to the heart at the point where the trachea is bifurcating। जहाँ पे ट्रैकिया बाइफर्केट करके लेफ्ट और राइट लंग में जाता है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये होता है। ठीक है। The spleen, tonsils, lymph node, Peyer's patches of small intestine and appendix are secondary lymphoid organs where proliferation of lymphocyte take place। जहां पे इनका नंबर इंक्रीज करते हैं वो होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पायर्स पैचेस। ये पायर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये सारे ऑर्गन्स आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। नो मैच्योरेशन और प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट्स। हियर ओनली दे विल इंक्रीज देयर नंबर, वो प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाउ स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑफ देम। ये वाला पॉइंट आप याद रखो, स्प्लीन सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। Now the secondary lymphoid organs provide the site for interaction of the lymphocyte with the antigen which then proliferate to become effector cells। तो जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एज आई टोल्ड यू अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि बी सेल्स वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके वो प्लाज्मा सेल्स में मैच्योर होंगे। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। नाउ दैट टेक्स प्लेस इन दीज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहां पे आपका डिफेंस सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आता है और तब वो एक्टिवेट होता है। तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वो इन ऑर्गन्स में होता है। मतलब ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, इनका एक और भी काम होता है, वो लोग ट्रैप कर लेते हैं एंटीजन को। दे विल ट्रैप द एंटीजन एंड दे विल कीप इट देयर। तो वहां जैसे ही आएगा बी सेल या फिर टी सेल, जब आएगा उसके कांटेक्ट में आएगा, एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा इनसाइड दिस लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, देन दे विल एक्टिवेट एंड कैरी आउट द डिफेंस मैकेनिज्म। Okay, so these are the two different type of lymphoid organs, primary and secondary. Now spleen is a very important part of the immune system. Spleen is a large bean shaped organ, mainly contains lymphocyte and phagocytes which act as a filter of the blood by trapping blood borne microorganisms and has a large reservoir of erythrocytes। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी बोला जाता है, बिकॉज वंस द आरबीसी आर मैच्योर्ड दे डिजेनरेट इन द स्प्लीन। ठीक है। बिसाइड्स दैट ये वहां पे स्टोर होके भी रहते हैं, आरबीसी स्टोर्स इन द स्प्लीन, और वो एक रिजर्वायर के तरह काम देता है। जब बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन होगा तो स्प्लीन ब्लड सेल्स रिलीज करता है टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड द इम्यून रेस्पॉन्सेस। ठीक है। बिसाइड्स दैट ये लिम्फोसाइट और फैगोसाइट भी कंटेन करता है जो ब्लड को फिल्टर करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। उसमें कोई अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, कोई सेल्स हैं, फॉरेन सेल्स हैं, उनको फिल्टर करने के लिए स्प्लीन हेल्प करता है। इट हेल्प्स एज ए फिल्टरिंग ऑर्गन, यू कैन से। नाउ लिम्फ नोड्स आर स्मॉल नोडल स्ट्रक्चर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। तो दे आर स्मॉल नोडल स्ट्रक्चर्स, सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो मेनली जॉइंट एरियाज में आपको ये देखने को मिलेंगे, ये छोटे छोटे नोड जैसे होते हैं। दे आर स्मॉल नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट स्पेसिफिकली एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इनफैक्ट लिम्फ वेसल्स के साथ वो अटैच होते हैं और वो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं। मेनली दे प्रोड्यूस लिम्फ, इसीलिए उनका नाम पड़ गया लिम्फ नोड्स। द लिम्फ नोड ऑल्सो हेल्प्स, they serve to trap the antigens and these antigens trapped are responsible for activation of lymphocytes and cause immune response, quite similar to that of the spleen। spleen जो करता है करीब करीब वही फंक्शन करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, very small small node like structures present throughout the lymphatic system। now this is how it looks like। as you can see, this is the complete lymphatic system or the immune system of the body। thymus एंड बोन मैरो, ये दो आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। थायमस एंड बोन मैरो आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। बिसाइड्स दैट बाकी सारे सेकेंडरी होते हैं, जैसे पायर्स पैचेस हो गया, इंटेस्टाइन में होते हैं एट दिस पॉइंट। अपेंडिक्स जस्ट बिलो द सेकम, it is present of the large intestine। then you have the auxiliary lymph nodes, then the spleen, besides the tonsils। tonsils भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड
ऑर्गन होते हैं, दे कैन हेल्प इन दिस स्पेसिफिक मैकेनिज्म। और ये जो छोटे छोटे गांठ जैसे आप लोग देख रहे हो, दीज आर द लिम्फ नोड्स, ठीक है, दिस स्मॉल स्मॉल नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज lymph nodes and they help to trap the antigen and filter, ठीक है। नाउ lymphoid tissues जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेनली आपके बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज में ही होते हैं। दे आर प्रेजेंट विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेसल चैम्बर टिल योर यू कैन से ब्रोंकस, वहां तक होते हैं। बिसाइड्स दैट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है, याद रखो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट मतलब योर यूरिनरी ट्रैक्ट, वेयर इन केस ऑफ मेल यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर कनेक्टेड एज वी हैव प्रीवियसली स्टडीड। तो उस ट्रैक्ट में मतलब यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, इन केस ऑफ फीमेल्स वेजाइना हो गया, तो इस जगह पे ये होते हैं, दिस टिश्यूज आर देयर। नाउ these are called as mucosal associated lymphoid tissue, क्योंकि ये म्यूकोसा लेयर में होते हैं। सी वी हैव प्रीवियसली स्टडीड कि अगर आप लोग इन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्रॉस सेक्शन देखोगे, उसके 4 लेयर्स होते हैं। बाहर का लेयर होता है सेरोसा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। Actually these tissues are present in that layer, the innermost layer called as mucosa। तो इसीलिए इनको बोला जाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। They are commonly called as mucosal associated lymphoid tissue, which constitute about 50%, ये पूरा 50% constitute करते हैं of all the different lymphoid tissues present in the body। बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं उनमें से 50% सिर्फ माल्ट ही होता है, MALT। रिमेंबर दिस, ये 1 मार्क में आता है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप याद रख लो, MALT, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। दिस इज हाउ माल्ट विल लुक लाइक। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल पिक्चर फ्रॉम अंडर ए माइक्रोस्कोप। एज यू कैन सी दिस इज द इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। ये जो लेयर आप लोग देख रहे हो ये म्यूकोसा है, ये है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ये भी वैसे ही करता है डिफेंस मैकेनिज्म, इट एक्टिवेट्स द बी सेल्स एंड देन दे विल कैरी आउट द ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस एंड द इम्यूनिटी विल बी जनरेटेड। तो ये उसी तरह से फंक्शन करता है। दिस इज द मैकेनिज्म। विल नॉट गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ माल्ट टिश्यू बिकॉज दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर कोर्स सिलेबस, बट सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है एंड जनरली प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, ठीक है। So students, this is all about the different kinds of immune system structures, the lymphoid organs and the lymphoid tissues. In the next class we'll move on to very important topics. There are 2 important topics that we'll be discussing in the upcoming class, that is about AIDS and cancer, very dreadful diseases. So we'll discuss about how they occur, what is their causative symptoms, how they can be treated. We'll be discussing that in the next class. Okay, thank you everyone.